نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت بلکہ رحمت للعالمین. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ہر لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے. آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ عطا فرمایا، ہم اسے بڑے دور چلے گئے. کچھ شاید میں بھی سکھانے کے حوالے سے اتنی کوشش نہیں کر سکا، اور پھر آگے آپ نے بھی سیکھنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی، اور پھر میرے نہ سکھانے سے اور آپ کے نہ سیکھنے سے جو کچھ ہوا وہ آپ بھی بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں. اور شاید اسی بھگتنے کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اگر ہم نے نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے. اس لیے کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. ان سے پھرے تو پھر سارا کچھ ہی پھر گیا. موسم پھر گئے، زمین اٹھ گئی، سب کچھ ہی پھر گیا. کیونکہ کامیابی اگر ہے، تھی اور رہے گی تو وہ ان کی غلامی میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ایک ایک بات ارشاد فرمائی. سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بھائی سے معاملہ کیا کرنا ہے، بہن سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ماں سے کتنی محبت کرنی ہے، باپ کا کیسے ادب و احترام. کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس پہ اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی ہے. اور ملک تو ملک بلکہ ہمارے 2-2 2.5 3 مرلے کے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. ملکی صورتحال یا علاقائی صورتحال تو چلو پیچھے رہ رہے ہیں، 2-2 3 مرلے کے ہمارے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے پڑے ہیں. بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک بھائی اوپر رہتا ہے ایک نیچے رہتا ہے. ٹھیک ہے، صرف درمیان میں ایک چھت کا فرق ہے. سالوں گزر گئے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی سلام بھی نہیں لیا. وجہ کیا؟ آپ کے طریقہ مبارکہ کو چھوڑا ہم نے. اگر کبھی آپ کے طریقے کو نہ چھوڑا ہوتا تو پھر کبھی یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. ایک چیز بیان کی ہے، واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتایا. آج انگریز اس پہ ریسرچ کر کے کلمے پڑھ رہے ہیں کہ واش روم جانے کے طریقے میں اتنی حکمتیں پوشیدہ. ہم نے تو کبھی جستجو ہی نہیں کی ہے. ہم نے تو کبھی بیٹھ کے غور و فکر ہی نہیں کیا بھائی اللہ کے رسول اگر یہ فرمایا گئے ہیں، آپ نے یہ فرمایا تو اس میں کیا حکمت ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے حالی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیا حکمت ہوگی اس میں؟ ہمارے پاس کا ٹائم ہے. ہم تو فکر معاش میں ایسے چلے ہوئے پڑے ہیں لیکن وہ ایک ادا پہ تحقیق کر رہے ہیں. یہ ان کی تحقیق ہے جی. وہ کہتے ہیں جی جو عورت جو مدت بیان کی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے آج کیوں حضرت عورتوں میں عام ہے؟ کیونکہ فیڈر آ گیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اور جس طرح دودھ پلانے کا حق ہے وہ اپنے بچے کو اس طرح دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کہا نا کہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو 2 سال پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کیوں حضرت عام ہو گئے. ہم نے چھوڑا اور پھر چھوڑ کے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا بھائی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. آ جاؤ واپس، کسی عالم کی صحبت اختیار کرو، کسی عالم سے پوچھ کے کوئی اچھی سی کتاب خریدو اور روز ایک اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک سیکھو. زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا، زندگی گزارنے کا مزہ. ایک بات ارشاد فرمائیے، کوئی راستے میں چلنے تک کا طریقہ بتایا. آج کیوں نہیں حضرت؟ کیونکہ ہم نے یہ میں اکثر جو روتا ہوں حضرت، یہ آگے آ کے یہ جو کٹ ہے، خدا کی قسم رونا پڑ جاتا ہے. گاڑی ٹرن کرتے کوئی آپ کے لیے رکنے کو تیار نہیں ہے. اور زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے بھائی کیا کام ہے اس قوم کو کہ جو اتنا ہے کہ حضرت ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے ہم اس کے لیے رک نہیں سکتے. اب تھوڑا سا
जितनी देर आप आगे नहीं गए आपके आगे से गुजारेंगे। अब आप आगे गए हैं, अब आपने फिर थोड़ा पीछे टर्न लेना है, तो फिर आप गाड़ी, अब वो पीछे वाले सांस नहीं ले रहे, पिछू कड्डी आएंगे। परेशानी ज्यादा इस बात की, चलो ना रुकना गलत बात है, रुकना चाहिए भाई, रुको एक दूसरे के लिए। और मैं कहता हूँ हजरत, आप इसको आप जितने स्टार्ट लेना, हो सकता है कोई ना रुके, आप अकेले रुके, आपको बड़ा बुरा लगे, देखो यार मैं रुके, भाई आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रुके, आप रुकेंगे, हो सकता है आपको देख के कोई एक और भी रुके, कोई तो इब्तिदा करे यार। मैं सफर करने वाला बंदा हूं, रोना पड़ जाता है जब गाड़ी टर्न करनी होती है। और दुख इस बात का, भाई काम कौन सा है जो हम कर रहे हैं कि इतना टाइम नहीं कि एक बंदे को हम आराम से गाड़ी टर्न करने दें। काम कौन सा है, कौन सा तीर मारा है, मुझे भी तो बताओ यार कोई। कि हम इतने कामयाब हो गए कि अमेरिकी परेशान है, नासा वाले परेशान है यार, इतनी कामू कौम है ये, किसी इनके पास टाइम ही नहीं कि किसी को गाड़ी टर्न करवा दें, इतनी कामू कौम है। हम तो मरीख तक गए, ये तो सूरज पे चले गए, सूरज पे बैठ के ये सूरज की रोशनी से छलियां भून रहे हैं, तक्के खांदी कौम। हजरत दुख ये है भाई को मुझे काम भी तो बताओ जो कर लिया आपने, कि आपके पास इतना टाइम नहीं कि एक बंदा गाड़ी टर्न कर रहा है, आप उसके लिए रुक ही जाए थोड़ा सा। अगर वो कभी आ जाए ना, वो जो कामयाब लोग हैं, तो वो हमें शायद देख के हैरान हो जाओ, इतनी कामू कौम, कौन सा, पता नहीं इनके पास कौन सा ऐसा काम इन्होंने जो जाके करना है कि इनके पास इतना टाइम नहीं कि रुक जाए कि एक बंदा अपनी गाड़ी टर्न कर ले। एक चीज बयान फरमाई है, लेकिन हमने, और अब बिल्कुल हमारा ये हाल है, ना दीन है और ना ही हमारे पास दुनिया है। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक रोज अपने एक आया मुबारका, उसका तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ है, उसकी तफसीर, एक हजरत हदीस पाक की कोई किताब जिसकी किसी सुन्नी आलिम ने उसकी जो है ना वो तशरीह की हो, पढ़े हजरत उसको, खुदा की कसम है। अब देखिए ना, बड़ी मारूफ हदीस हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम तब फरमा रहे हैं, निगाह नबूवत देख रही है, फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खम्सन व यंसौन खम्सा, फरमाया करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, 5 से मोहब्बत रखेंगे लेकिन 5 को भुला देंगे। पहले निगाह नबूवत देख रही है, मेरी उम्मत पे ये वक्त आएगा, 5 से मोहब्बत करेंगे लेकिन क्या होगा, 5 को भुला देंगे। सबसे पहले क्या फरमाया, एक चीज हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। सबसे पहले क्या फरमाया, फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे लेकिन आखिरत को। और हजरत इस वक्त दुनिया से मोहब्बत का जो जिन है वो सर चढ़ के बोल रहा है। याद रखिए हजरत जी, बिजाती ही दुनिया बुरी नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ यही कहा गया, फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। लेकिन हजरत जी खराबी कब होगी, जब ये आखिरत की खेती नहीं रहेगी, जब ये हमारी महबूब, जब ये हमारा मतलूब, जब ये हमारा मकसूद बन जाएगी। अल्लाह दीन क्या कह रहा है, तेरा महबूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल होना चाहिए, तेरा मकसूद भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल होना चाहिए, तेरा मतलूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल होना चाहिए। खराबी तब होनी है जब ये हमारी महबूब, मकसूद और हमारी मतलूब बन जाएगी। अल्लाह ये तीनों चीजें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, महबूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल, मकसूद भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल, मतलूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल। लेकिन जब ये तीनों चीजें तुमने दुनिया के लिए कर दी तो फिर काम खराब। और इस वक्त हजरत दुनिया की मोहब्बत का जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ हजरत, अल्लाह का शुक्र है अभी तक सीखने वाला माइंड है, और दुआ गो कि अल्लाह आखिरत तक सीखने वाला रखे। क्योंकि जिस दिन हजरत ये खन्नास आ गया ना दिमाग में कि अब नहीं सीखने की लोड़, अब तो मैं जनाब अपने वक़्त का को बहुत बड़ा शायख हो गया हूँ, फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। मैंने देखा है हजरत, जब तक दुनिया अभी महबूब, मकसूद और मतलूब नहीं होती। मिसाल मैं आपको भाइयों का प्यार बयान करने लगा, इतना प्यार भाइयों में, मैंने अपनी आंखों से ये मनाजर देखे। मुझे आज भी लगता है कि ये ऐसे मुझे याद है जैसे ये आज भी अंदर आवाज़ कहीं गूंज रही है। माँ सुबह जाते हुए क्या कहती है, वो आज मौसम भी बदल वाला है, तो जरा लेट ना आइयो, टाइम ना कर आ जाइयो, अज मूली कंडा कर लाँगी तो रात में ना मूलियाँ वाले परौंठे बनावांगी तो नाल चाह का कप। मुझे ऐसे लगता है आज भी आवाज़ अंदर वो गूंज रही है मेरे। ठीक है जी, अब जाहिर है जी इस तरह तो हो नहीं सकता कि टक टक करते इकट्ठे आए, को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मुझे मेरी आंखों के सामने मंजर है, पहले बड़ा आ गया, माँ ने क्या क्या पुत्रा सुट दिया परौंठा एक नाल बना दिया चाह का एक कप, तो वड्डा की कहता अम्मी जी की गल करते फिर दूजिया भी आ लेंदे हो, कलियां की मज़ा आना है, इकट्ठियां खावांगे मज़ा आएगा। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ,
सच कहना, मैंने झूठ तो नहीं बोला। इसी तरह था ना, कभी वो वक्त था कि जब अपने भाइयों के बगैर एक मूली का परांठा मुझसे नहीं खाया जाता था। लेकिन ये तब की बात है जब अभी दुनिया मेरी मकसूद और मेरा मतलूब, अभी बचपन था, अभी दुनिया की मोहब्बत का दिल पे गलबा। तब मुझे अपने भाइयों से इतना प्यार था कि उन भाइयों के बगैर मुझसे मूली वाला, क्या होता है यार मूली वाला पराठा, मुझसे मूली वाला पराठा भी भाइयों के बगैर नहीं खाया जाता था। मेरी आंखों के सामने मंजर है। छोटा आ गया, माँ ने उसी तरह छोटे को कहा, पुत्र थके आए हैं, सुट दिया पराठा। तो छोटा क्या कहता है, मैं की करन डे हो, भाई नो आ लेंदे हो, कलियां तो नहीं ना मजा आना, भाई ना खावांगे तो वो तो मजा आएगा। कभी ये हालात थे, ये पाइन बगैर मूली वाला पराठा नहीं सी मेरे को लंघदा हुंदा। लेकिन जब ये दुनिया से मोहब्बत हुई, फिर इस दुनिया की मोहब्बत ने वो गुल खिलाए कि हज़रत जी वड्डा उत्ते रहिंदा है, छोटा थल्ले रहिंदा है। विच सिर्फ हज़रत एक छत थे, लेकिन क्या है, एक दूसरे से सलाम लिए भी ज़माने हो गए। इसकी मोहब्बत, भाई नहीं बदलते हज़रत, भाई तो भाई होता है, बहनें नहीं बदलती, बहनें तो बहनें होती हैं। क्या होता है, हमारा मकसूद बदल जाता है, हम दुनिया को अपना महबूब बना लेते हैं। लेकिन महबूब फरमा रहे हैं, वो याद रखना, दुनिया को अपनी महबूबा बनाने वाले याद रखना, याद रखना। और ये एक हदीस पाक है जिसका मफहूम सुन लीजिएगा। सैयदना फुदैल बिन नयाज बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं अपने वक्त के। अब फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रही है उसका मफहूम है। अब फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत बुढ़िया, जिसके ये 2 दांत आगे को निकले होंगे, उसको लाया जाएगा। आंखें नीली होंगी, दांत बाहर को निकले होंगे, इंतहाई बदसूरत होगी, दुनिया के सामने उसको लाया जाएगा। और फिर लोगों से पूछा जाएगा, इसको जानते हो, ये जो नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत 2 दांत आगे को निकले हुए जो बुढ़िया है, इसको जानते हो? लोग, वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से जवाबन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते, हम नहीं इसको जानना चाहते। वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से क्या कहेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और ये कुछ जानने वाली चीज है, इसकी शक्ल तो देखो कितनी बदसूरत है, ऊपर से नीली आंखें, बाकी कसर 2 दांतों ने निकाल दी। हम ये हदीस के अल्फाज हैं जी, हम इसकी पहचान से अल्लाह पाक की पनाह चाहते हैं। जब लोग ये कहेंगे तो फिर आगे से क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा ये वही दुनिया है जिस पे तुम फख्र किया करते थे, ये वही दुनिया है जिस पर तुम फख्र किया करते थे, इसकी वजह से तुम एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ते थे, इसी की वजह से तुम एक दूसरे से हसद और दुश्मनी करते थे। ये वही दुनिया है जिसकी मोहब्बत और इश्क में तू ऐसा पागल हुआ, ना तुझे कोई रिश्ता याद रहा, ना तुझे अल्लाह याद रहा, ना तुझे अल्लाह का रसूल याद रहा। आज तू कह रहा है कि मैं इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगता, तब तो तू इसकी मोहब्बत में ऐसा पागल दीवाना था, तुझे कुछ तू चाहता था बस ये मुझे मिल जाए, मैं इसको हासिल कर लूं, उसके लिए सूद लेना पड़े, उसके लिए रिश्वत लेनी पड़े, उसके लिए मिलावट करनी पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को कुत्ता खिलाना पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को जनाब गधा काट के खिलाना पड़े, मैं तैयार हूं, बस मुझे ये मिल जाए। और आज कह रहे हो कि मैं इसको पहचानने से भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं। यही तो वो दुनिया है, क्यों भाग रहे हो आज इससे? यही वो दुनिया है जिसने तुम्हें ऐसा पागल दीवाना कर दिया, कुछ याद नहीं रहा। क्या हो रहा है हजरत? ये आप बाजारों में चले जाएं, केचप इंतहाई गंदा, किसी को नहीं याद, यार अल्लाह की मखलूक ने खाना है इसको, अल्लाह की मखलूक बीमार होगी इसको खा के, ना ना ना, पैसे मिलने चाहिए। अगर अच्छा केचप यूज करूंगा, अच्छी मायो यूज करूंगा, अच्छी ब्रेड यूज करूंगा, अच्छा चिकन यूज करूंगा, बचत कम आएगी, ज्यादा पैसे चाहिए मुझे, क्योंकि दुनिया मेरा मकसद बन चुकी है। अल्लाह की मखलूक मरती है तो मर जाए, अल्लाह की मखलूक बीमार होती है तो हो जाए, इनके जिगर खराब होते हैं तो होने दो, इनके गुर्दे खराब होते हैं तो होने दो, मुझे तो पैसे चाहिए। चले यार, तुझे किस पागल ने कह दिया कि गंदी केचप या गंदी मायो या गंदा ब्रेड या गंदे मसाले यूज करने से तेरे पैसे बढ़ जाएंगे? और बेवकूफा, ऐसे नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे उसके जिसके अल्लाह बढ़ाएगा, बढ़ेंगे उसके जिसके, तू ये सोच रख, नहीं ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैं गंदा केचप यूज जो मेरे अल्लाह ने मेरे वदाने ने वदाएगा, ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैंने गंदी चीज यूज है।
लेकिन ऐसी दुनिया की कहा जाएगा आज इसको पहचानने से भी भाग रहे हो। यही वो दुनिया है जिसके लिए तुमने सारा कुछ किया, झगड़े भी, गले कटे, गोलियां चली, कता ताल्लुकी हुई, रिश्तेदार छोड़े, बाप छोड़ दिया, बहन छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, अब पहचानने से भी इनकार करते हो। ये वही दुनिया है जिस पे शैदा होके जिसकी मोहब्बत ने तुम्हें सारा, इसीलिए तो हजरत सुल्तान ने कहा है, अब फरमाते अद्दी लानत दुनिया ताई। भाई ये तो है ही मालूम, इस पे तो अल्लाह ने ये तो है ही मालूम, अगर ये अल्लाह को पसंद होती तो अल्लाह किसी काफिर को मच्छर के पर के बराबर भी कुछ अता ना फरमाते। देख लो हजरत साडे लिए रगड़े नहीं होते, खोल छड़े ने बूए उन्होंने। फरमाया अद्दी लानत दुनिया ताई, वह है ही मालूम है, ये मखदूब है ये, लेकिन आगे क्या फरमाया, फरमाया अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं। और होते थे सारी लानत, जिसको पता भी है मखदूब है, जिसको पता भी है मखदूब है, फिर भी इस पे शैदा हो गए, जिसको सारी लानत उस पे, जिसको पता भी है जिसने इससे मोहब्बत की इसने उसका कुछ नहीं छोड़ा, ना दीन छोड़ा, ना दुनिया छोड़ी, ना आखिरत छोड़ी, सारी लानत उस पे, पता होने के बावजूद फिर इसी पे मर रहा है। ये आखिरत की खेती है। अगर तू लेना हो तो ये तुझे बहुत कुछ देगी, लेकिन अगर तूने इसको अपना महबूब बना लिया ना, फिर तेरा कख नहीं रहना। अब हजरत जी परसों भी हम तो फोन शुरू हो गए, अब इसी तरह के फोन आएंगे। फोन और जी हजरत जी हालात बड़े ख़राब हैं, तो असी ऐत की कुर्बानी रहन ना दइए। मैं मेंबरशिप पे बैठा हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी एक आया मुझे, अब जैसे जैसे दिन आएंगे बड़े फ़ोन आएंगे, हजरत जी हालात नहीं ठीक। और हैरानगी की बात है कि जो बंदा फ़ोन कर रहा है वो मुझे आईफोन से फ़ोन कर रहा है, जो मुझे पता है ना उसके पास कौन सा सेट है, वो मुझे एप्पल के फ़ोन से, एप्पल कंपनी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करके मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक है, तो की कुर्बानी रहने ना दइए। भाई एप्पल वाली हालात ठीक ने, तेरी दुआरी है रब ते रब दे रसूल दी, ते फिर हालात नहीं ठीक। अच्छा जी 3.5-4 लाख का फोन है, तो मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक, तो इधर मसला दसो है कि कुर्बानी रहने ना दइए। भाई अल्लाह की बारी है ना, अपनी बारी हालात ठीक नहीं है, बारी अल्लाह की जो आ गई है, फिर हालात जी याद रखना वाजिब तो है ना, नहीं वो आपको मसला पता है किस किस पे वाजिब है, लेकिन याद रखना भाई जिसकी हालात नहीं ठीक फिर भी अपने हालात को दे कि तू नहीं ठीक, नहीं कर सकते हिस्सा पा। अल्लाह के बंदे गाड़ी तेरे नीचे है, फोन हाथ में तूने पकड़ा हुआ है, आला किस्म के कपड़े तूने पहने हुए हैं, 3 वक्त का खाना तू आला किस्म का खा रहा है, और कुर्बानी की दफा हालात नहीं ठीक, हिस्सा डालो। आलिम साहब से पूछो मेरे घर में किस किस पे कुर्बानी वाजिब है, हिस्सा डाल लो। चलिया की तेरे हालात नहीं ठीक, बुढ़ापे दी औलाद है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी कोई हालात खराब हो सकते हैं क्या? तेरे हालात को हो गया, बुढ़ापे की औलाद है जी। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने एक और नबी अता फरमाई, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी हालात सख्त होंगे। एक ही पुत्र है अभी हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, बाद में बुढ़ापे की औलाद। उम्र मुबारक जो तफसीरों में लिखी है, कमी पेशी अल्लाह माफ करे, 86 साल हमने पढ़ी है जी, 86। शायद हजरत जी एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इतने बड़े मजमे में कोई 86 वाला बैठा हो। अल्लाह के खलील की उम्र मुबारक 86 साल है। 86 साल बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, और वो भी नबी ने, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना। और फिर क्या है, ख्वाब में हुक्म आ रहा है कि अपने इस बेटे के गले पे छुरी चला दे। इससे ज्यादा भी हालात हो सकते हैं। एक पुत्र, बुढ़ापा है, और हुक्म क्या आ गया, इसके गले पे नहीं, खुदा के बंदे इस तरह ना करो, फोन बेच के दे फिर अल्लाह तुझे दे देगा, शुक्रिया के तौर पे करना पुत्र। कुर्बानी कोई दिखावा नहीं, ठीक है ना, ऐश्वर्य बच्चा लै जड़ा लैके तेरे जाने ने सारे महल्ले फिरना है, हिस्सा डाल, अपना डाल। अगर तेरी बीवी के पास जेवर है तो उसका भी डाल, 30-35 हज़ार में कुर्बानी हो जाती, ना दिखावा कर इस दफा, लेकिन पुत्र करो शुक्रिया के तौर पर, उसकी रहमत देख अपने ऊपर। ये क्या हुआ, अपने सारे तू चस्के पूरे करे, जब उसकी बारी आए तो तेरे हालात टाइट हो जाते हैं। खून बेच अपना, शुक्रिया के तौर पे दे मियां, हर तू अपना अपना कशन मशन कर रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तेरे हालात टाइट हो जाते हैं मियां। बाज़ दफा कुछ चीजें शुक्रिया में करनी पड़ती हैं, फर्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं गुजर रहे थे, तो एक पत्थर छोटा था लेकिन उसमें से पानी बड़ा ज्यादा आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पत्थर छोटा है, पानी बड़ा ज्यादा निकल रहा है।
आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम ये क्या है, पत्थर छोटा है, पानी इतना ज़्यादा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पत्थर से ही पूछें, वो आपको जवाब देगा। आपने पत्थर से पूछा, वो है छोटा है, पानी इतना ज़्यादा। वो कहता है जब से मैंने ये सुना है ना कि जो जहन्नम की आग है, उस आग को इंसानों और पत्थरों के ज़रिए भड़काया जाएगा। जब उस आग को अल्लाह तेज़ करने का इरादा फरमाएंगे तो बतौर बालन, बतौर पेट्रोल, बतौर डीजल उसमें इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि कहीं उन पत्थरों में जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी ना शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को यह खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है कि वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक, इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां की गल नहीं करता पाया, मैं एप्पल वालियां की गल कर रहा, मैं सैमसंग वालियां की, जिन्होंने थले 2.5-3 लाख के मोबाइल ने, जिनके नीचे 60-70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे? अगर तू कहता भी है नहीं कारोबारी हालात ठीक है, बोल तो हो नहीं सकता। किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले, वो तुझे बताए तेरे हालात ठीक नहीं है कहीं। लेकिन भाई शुक्रिया कर, शुक्र कर मियाँ कितने बार टमाटर की रेड़ी नहीं चलवाई। शुक्र कर मियाँ कितने राती लाई बज तेरे को फल नहीं वकवान डिया था। शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही, वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहि सलाम ने पहले फरमाया वक्त आएगा 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़कात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक, हजरत हालात नहीं ठीक। ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना मसाइल को, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और करान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारायण का गान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे? आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई व युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करेंगे हिसाब देन नूं। सानू हिसाब याद होई, असीं कदी डंडियां ना मारी। ये सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हज़रत जी सबसे ज्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक जिंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पे, मेरी सब तो होती जान। तीसरी गल जड़ी फरमाई वो क्या? फरमाया व युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हज़रत जी मां मर जाए ना, मां मर जाए ना, वो हमारे नाथ खां फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। मां मर जाए तो मैं रोंदियां वेख्या है, अखां ही तरस गई ने, कदी वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे मां याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी मां का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है अगर वो मां का दिल ना नरम करे कभी मां इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, मां के दिल का खालिक भी वो है। तुझे मां याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड़ क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है, बड़ी मामा करते हो सारे, मैंने देखा है एक वक्त आता है मामी कहती चुक दबाओ। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। और भाई अगर उस जात ने तेरी मां के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी मां कुछ ना करती।
اس کو یاد کر. میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر. وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر دیا ہے. لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے, وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا. جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے, باقی پھر اس کو بھول جائیں گے. حالانکہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے. صحیح بتاؤ, ہماری ضرورت نہیں رہ گیا. کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہنا یاد کرتا جی انہوں ادو یاد کرنا جی پھسکا پینا کوئی. اگر کوئی بیمار نہ ہو, ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو, ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے, دیکھو مصیبت آ جائے, کاروبار ڈگمگا جائے, کام ٹھیک نہ ہوگا, ٹھیک نہ آ رہے ہیں. جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا, تو کون میں کون. چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ. گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے, معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. مکانوں سے, کوٹھیوں سے, محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. کوٹھیاں جب اے سی لوان گے, گرمی بڑی ہے, لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول. وما علینا الا البلاغ المبین.